Hello dear students. So now we are going to start our new topic of chemical kinetics. Other topics we will be dealing with other topics after when we cover or when we complete this topic. After that we will cover all other topics also. But today we will see this new topic of chemical kinetics. It is really easy, and once you understand, you can yourself solve all the questions regarding this topic. So try to understand, and if you are not getting anything, please ask me. So chemical kinetics. So chemical means everybody know, because you are studying chemistry, everyone is known about chemical word, and kinetics means speed, right? Kinetics, what will be the rate of reaction? Okay, so with which speed the reaction will take place is all about chemical kinetics. Okay, because in chemistry we are every now and then we are dealing with chemical reactions. So when we speak about chemical reaction, we should also know what is the rate of reaction, or how much time a reaction will take to complete. Is it so that when we mix any two of the reactant, that reaction will happen and will give product in definite period of time? For some compounds or some molecules it is, and for some compound or molecule it is not. So for some of the fair molecules, or we will take some of the fair examples which follow this chemical kinetics, and let's start with this topic first of all. And which molecules will show this reactions also, and how can we study the reaction rate, everything we will cover. Okay, step by step we will see everything regarding how the reaction take place, and what will be the, means how many number of molecules will take place, will undergo reaction, etc. Okay, so let's start. So in introduction part, when we are speaking about chemical kinetics, first of all we will see its definition. So here is the definition. Chemical kinetics is a branch of chemistry which deals with the rate of chemical reactions and the factors those affect them. Okay, this word is important, rate of chemical reaction. Okay, we will be dealing with rate of chemical reaction and the factors. Also when a reaction is taking place, there are some factors. अगर वो फैक्टर रहेंगे नहीं तो रिएक्शन ऑकर होगी नहीं, करेक्ट? सो फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Favorable factors should be there for a reaction to occur. So therefore what is chemical kinetics? It is the branch of chemistry which deals with rate of reaction and the factors those affect them. Means if any reaction is requiring a particular temperature, and after attaining that particular temperature a reaction will take place, so temperature will be one of the factor, and so on. Time is also one of the main factor. How much time a reaction will take? If a reaction occur in a minute or an hour or hours, so time is also one of the important factor. Okay, many more factors we will be looking in our chapter. Okay, so now what is the reason? Means why we have to study this topic? To predict how rapidly the reaction approaches the equilibrium. We can predict means we can come to know that how rapidly the reaction approaches the equilibrium. For a reaction to occur, means for conversion of A to B, there should be an equilibrium. Means in how much time A will get converted into B. This rapidness, is it a fast reaction or a slow reaction? Or it is a moderate type of reaction? We will come to know about this in this topic. Another thing, it gives us information on the mechanism of chemical reaction. Okay, whether it is a first order, second order, third order, zero order or nth order.
So we can study or we can get the information regarding the mechanism of the chemical reaction. Also, as the number of reaction occur as a sequence of elementary steps constituting the mechanism of reaction. When we are speaking about mechanism of reaction, we will come to know about the first order reaction. Means first order means it is dependent on one of the reactant. If it is the second order, then it is dependent on two molecules of reactant or two reactants. Third order means three reactants, and zero order means it is independent of reaction. Okay, so like this we can come to know about the mechanism of chemical reaction also. Okay, now we will see what is rate of reaction. Means how we can determine which reaction will take place, or what will be the rate of reaction, means with which speed the reaction occurs. So in this we can classify its type as very fast reaction. So for example, in very fast reaction we can speak about ionic reactions such as NaCl and AgNO3. When they both react, they simultaneously form their ions, and within fraction of second, see, in 10 to the power minus 6 second, NaCl get converted to AgCl. Okay, it precipitate out silver chloride and sodium nitrate is formed. Okay, और अगर इतना फास्ट रिएक्शन होगा तो हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे? सो ROR, that is rate of reaction, cannot be observed, and hence this type of very fast reactions are not considered or not discussed. Okay, similarly very slow reaction, for example we are taking rusting of iron. All of you know that rusting of iron take years to complete, right? एक या दो दिन में रस्टिंग नहीं होता है ना, रस्टिंग होने के लिए सालों भी लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, उसके बाद में ही रस्टिंग होता है. तो प्रैक्टिकली उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना इज नॉट पॉसिबल एंड ऑल्सो नॉट यूजफुल. ओके, तो वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो रिएक्शंस विल नॉट बी कंसिडर्ड. वी विल टेक इन टू कंसिडरेशन विच आर reactions which are moderate, means their rate of reaction is moderate, means in particular finite time the reaction will take place. For example, molecular reactions like when nitrogen reacts with hydrogen, it forms ammonia. Haber's process, remember? So 3 bonds of nitrogen easily breaks when hydrogen react with nitrogen and it forms ammonia. Okay, here bond breaking and bond making is there, and this conversion take place in finite time. So this type of reactions are considered to study the rate of reaction. As we know, rate of reaction describes how rapidly the reactants are consumed or the products are formed. Okay, every time जब भी हम ये रिएक्शंस देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट्स हमेशा उसका कंजम्पशन होगा और प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होगा, राइट? प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज फॉर्म. तो ये डिटरमाइन करने के लिए हम फर्स्ट थिंग देखेंगे एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. एवरेज सबको मालूम है, एवरेज निकालते हैं हम लोग उसी तरीके से. सो व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? इट कैन बी डिस्क्राइब बाय नोइंग द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. ओके, एक अमाउंट देखेंगे हम रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, तो हम वो जो अमाउंट होता है उसको हम रिएक्टेंट के फॉर्म में हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन. तो हमेशा हम कॉन्सेंट्रेशन ये वर्ड का यूज करेंगे पूरे सारे रेट ऑफ रिएक्शंस डिटरमाइन करने के लिए. तो व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल ओवर विच द चेंज ऑकर्स. टाइम इंटरवल मीन्स टाइम, कितने टाइम के लिए हो रहा है. सो देयरफॉर चेंज इन टाइम. ओके, चेंज इन, सो एवरेज रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन स्पीशीज और मॉलिक्यूल्स जो भी हम लेंगे डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. उसको हम किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा सी बाय डेल्टा टी. डेल्टा मीन्स सबको पता है चेंज, सी इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड टी इज फॉर टाइम. कितना टाइम का चेंज हुआ मीन्स इनिशियल और फाइनल, और कॉन्सेंट्रेशन भी फाइनल और इनिशियल. ओके, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज एवरेज रेट. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें A इज गेटिंग कन्वर्टेड टू B. A क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है, और B क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है.
ओके एक रिएक्शन हो रही है, उसमें ए इज गेटिंग कंज्यूम्ड एंड बी इज प्रोड्यूस्ड। तो उसका अगर हम इंडिविजुअल एवरेज देखेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो कैसे हम उसके फॉर्मूलेज लिखेंगे, ये बेसिक चीजें समझ लो अच्छे से, तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते आएंगे। तो एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इक्वल टू, जब कंज्यूम हो रहा है मतलब कि चेंज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है मतलब कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा, है ना, ए का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा मतलब कि डिक्रीज होगा, तो उसको हम माइनस साइन देंगे। सो माइनस ऑफ डेल्टा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, दिस इज फॉर कंजम्पशन ऑफ ए। फिर एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, बी फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव साइन देंगे। सो देयरफॉर पॉजिटिव या फिर प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये हो जाएंगे इनके इंडिविजुअल फॉर्मूलेज। अब इसका अगर एवरेज निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और ROR एवरेज, तो उसके लिए क्या रहेगा, दोनों भी टर्म्स इक्वल रहेंगे क्योंकि रिएक्शन ए और बी के बीच में ही हो रही है, तो इक्वल टू माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दिस इज ROR फॉर दिस एंड ROR इसको भी इक्वल है, मीन्स दोनों को भी इक्वल है, प्रोडक्ट को भी, रिएक्टेंट को भी इक्वल है और प्रोडक्ट को भी इक्वल है, तो इक्वल टू प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, फॉर्मूला जब भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछा तो रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट भी रहेगा, इक्वल टू ROR भी रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों को भी इक्वल रहता है। इसके लिए इसका यूनिट भी देख लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में तो कॉन्सेंट्रेशन को हम किस में बताते हैं, मोल पर डीएम क्यूब। ओके, कॉन्सेंट्रेशन को किस में हम बताते हैं, मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। ओके, डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, सेकेंड, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड और मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, कुछ भी है डीएम क्यूब के फॉर्म में पूछा तो भी करेक्ट क्वेश्चन या आंसर, या तुमने लिखा तो भी, और लीटर के फॉर्म में लिखा तो भी करेक्ट। ओके, सेम कन्वर्जन है इसलिए। इसके बाद में तो अब देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसके पहले क्या देखा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अब देखेंगे इंस्टेंटेनियस मतलब उस समय पर, ठीक है, उस इंस्टेंट पर किसी मतलब एक रिएक्शन हो रही है और कोई इंस्टेंट पे हमको उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो वो जो निकालना होता है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है। तो उसके लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, देखेंगे अभी आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन इज फॉलोड बाय मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल। ओके, डिफरेंट टाइम इंटरवल पे मीन्स पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे अगर 10 मिनट की एक टोटल रिएक्शन है तो 7 मिनट पे उसका क्या रेट ऑफ रिएक्शन था, 5 मिनट पे उसका क्या रेट ऑफ रिएक्शन था, तो ये हम निकाल सकते हैं। तो वो जो चीज निकाल सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उस टाइम इंटरवल पे हम उस समय पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, उस चीज को जो निकालना होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। दिस चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन आर रिलेटिवली फास्ट इन द बिगनिंग विच लेटर बिकम स्लो। जब हम ग्राफ देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि स्टार्टिंग में रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है, फास्ट होती है, और बाद में आगे चल के वो स्लो हो जाती है रिएक्शन। ओके, तो ये ग्राफिकल फॉर्म से, दिस इज रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन है, देखो ब्रैकेट में लिखा है इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। जब रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, ग्राफ देखो नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरीके से क्या हो रहा है, मीन्स नीचे जा रहा है, इसका मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है, ऑब्वियसली रिएक्टेंट है, कंज्यूम होगा। और बाद में देखो नेक्स्ट ग्राफ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये देखिए कैसा होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होने के बाद में एक इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो ये जो दो प्लॉट है वर्सेस टाइम, तो एट पर्टिकुलर टाइम हम इस तरीके से कुछ डॉटेड लाइन करके एट पर्टिकुलर टाइम हम उसका क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर इस टाइम पे बोला तो हम उस टाइम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, या इस तरीके से देखो यहाँ पर भी अगर प्रोडक्ट का पूछा तो इस टाइम पर कितना प्रोडक्ट बना था, इस टाइम पे कितना प्रोडक्ट बना था, ऐसा हम प्लॉट करके निकाल सकेंगे। तो एक ये तो हो गई स्लोप निकालने का, ये एक तरीका। और दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि हम एक
टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो इस तरीके से एक पॉइंट आएगा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है, सब लोगों को टेंजेंट पता होगा। यहाँ पर देखो फॉर रिएक्टेंट भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है जहां इंटरसेक्ट होता है वो पॉइंट। तो ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करके भी हम ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उससे हम थीटा की वैल्यू निकाल कर भी हम कॉन्सेंट्रेशन को पता कर सकते हैं। या तो फिर हमारे पास स्लोप का भी फॉर्मूला है, आप लोग अगर मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो पता होगा, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। करेंगे हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी। तो इस फॉर्मूले से भी हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं, दोनों भी निकाल सकते हैं ग्राफिकल मेथड से फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थीटा जो रहेगा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसलिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे, टेन थीटा यूज करेंगे। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू भी निकालते आती है। कैसे निकालेंगे हम न्यूमेरिकल्स में देखने वाले हैं अभी आगे। इसके बाद में फॉर एग्जाम्पल लेंगे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए या समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, और एक और चीज उसके पहले, ये तो बात हो गई थी कि कैसे स्लोप निकालना है कोई भी टाइम पर। अगर इंस्टेंटेनियस रेट हमको निकालना है तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, dc/dt। जब हमारे पास एवरेज था तो हमने क्या करा था, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन था अपॉन डेल्टा टी लिया था, याद है, फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ROR फॉर एवरेज, ये एवरेज के लिए था। पर इंस्टेंटेनियस के लिए हमने क्या किया, ये जो डेल्टा है उसको डी से, मतलब वो डेरिवेटिव टर्म से हमने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, सो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है ये क्या है, ये दोनों अलग चीज है। फॉर एवरेज हम डेल्टा टर्म यूज करेंगे, फॉर इंस्टेंटेनियस dc/dt डेरिवेटिव टर्म यूज करेंगे। c क्या है, अगेन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और dt क्या है, चेंज इन टाइम। ओके, तो इस तरीके से हम फॉर इंस्टेंटेनियस रेट रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरीके से हम एवरेज रेट रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, अगर एक रिएक्शन हो रही है जिसमें A इज गेटिंग कन्वर्टेड टू B, ओके, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A एट एनी टाइम t विल बी इक्वल टू माइनस डी, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय dt। कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इसलिए उसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन, कंजम्पशन है इसलिए माइनस साइन, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B एट एनी टाइम t विल बी, कुछ भी नहीं है इसका मतलब पॉजिटिव है। ओके, लिखना है तो लिख भी सकते, नहीं लिखा तो भी चलेगा, प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। सी अगर उसी का जो ए से बी में कन्वर्ट हो रहा था उसका अगर ROR निकालना है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t निकालना है, तो कंजम्पशन ऑफ ए हो रहा था तो माइनस dA/dt, दोनों भी टर्म्स ROR को इक्वल रहने वाली है, ये टर्म इसको भी इक्वल, और प्रोडक्ट जो बना था डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन dt उसको भी इक्वल रहने वाली है। ठीक है, तो कंजम्पशन मतलब रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट एंड बोथ द टर्म्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसलिए इक्वल इक्वल लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद में ये जो है सिंपल विदाउट जो इनके कोएफिशिएंट्स है वो सब एक दूसरे को इक्वल कैसे रहेंगे, कब रहेंगे, जब 1 मोल लिया है हमने, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हैं और प्रोडक्ट भी 1 मोल ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ट्रू फॉर 1 मोल ऑफ A एंड B ईच, दैट इज द कंजम्पशन ऑफ A इज इक्वल टू, सॉरी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। और एक और टर्म में हम इसको बोलेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इस टाइप से पूछा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ROA, रेट ऑफ अपीयरेंस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, रेट ऑफ डिसअपियरेंस को हम ROD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कब होगा ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को इक्वल, कब होगी, जब 1 मोल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोएफिशिएंट्स चेंज हो गए, है ना, सारी रिएक्शन तो 1 मोल में नहीं हो सकती ना, किसी का कॉन्सेंट्रेशन कभी ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, या फिर उसके जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की हम बात करने वाले हैं कि दे हैव डिफरेंट स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक रिएक्शन है जिसमें A का एक ही मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, B के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोडक्ट में 2C बन रहे हैं, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं वो कंपाउंड के।
ठीक है। तो क्या हो गया, देखो अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो है वो चेंज हो गए। तो जब ये चेंज हो जाते हैं तो हम उस समय पे ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है। वी विल राइट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, ए क्या है, रिएक्टेंट पार्ट में है, कंज्यूम हो रहा है, इसलिए उसके लिए माइनस साइन 1 है ये, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 1। तो जो 1 है इसके पास में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो हमने क्या लिखा, -1/1, ठीक है। हमको उसका इनवर्स लेना है, आगे केस में और समझ में आ जाएगा। डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी विल बी इक्वल टू, ROR को सब इक्वल होता है, बराबर हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होते हैं। तो जब कोएफिशिएंट्स चेंज हो जाते हैं तो उस समय का देख रहे हैं, इसके बाजू में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। बी के लिए कितना है, देखो 3 मॉलिक्यूल्स है, तो उसका भी वो भी रिएक्टेंट पार्ट में, इसलिए नेगेटिव साइन, और 3 जो है उसके कोएफिशिएंट का इनवर्स ले लेंगे 1/3 इंटू डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पर कितना है, 2 है, तो उसका भी इनवर्स 1/2 हो जाएगा, डिवाइड इक्वल टू पॉजिटिव 1/2 डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, इस टाइप का हमको लिखना पड़ता है। कोएफिशिएंट्स जो होते हैं उसके इनवर्स हो जाते हैं, और रिएक्टेंट है तो साइन माइनस और प्रोडक्ट है तो साइन पॉजिटिव। और ये साइन भी जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये साइन को भी हम आगे चल के इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, क्योंकि हम इसको क्या लगाने वाले हैं, मोड, जैसे कि बी अपॉन डी टी है, तो अगर हमने इसको मोड लगा दिया तो मोड लगाने पे क्या होता है, आप लोगों को शायद मालूम होगा, मैथ्स के बच्चों को, वो क्या हो जाता है, इसका माइनस साइन हट जाता है, तो डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, इसका अगर हमने मोड में डाल दिया तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, बस करेंगे सॉल्व, उसमें भी और आ जाएगा 1-2 बार, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, जिसका मैथ्स नहीं है उसको भी हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, हमको ROR अगर निकालना है तो क्या करेंगे, अगर एक रिएक्शन दी है जिसमें ट्वाइस N2O गिव्स यू 4NO2 प्लस O2, ठीक है, तो इसका ROR मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू, माइनस है क्योंकि रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लेंगे, 2 का इनवर्स लेंगे, ठीक है, इनवर्स लेना है तो हाफ हो जाएगा, और डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O डिवाइडेड बाय डी टी, ये हो गई रिएक्टेंट की बात। प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, 4 है तो उसका इनवर्स प्लस 1/4 डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू, फिर क्या है, O2 है, पॉजिटिव साइन आएगा, प्रोडक्ट है इसलिए कुछ भी नहीं है, इसलिए 1/1 ही होगा, डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डी टी, ठीक है। तो इस टाइप से हमको ये एक एग्जाम्पल हमने देखा कि कैसे हम ROR लिखते हैं। ये ROR लिखते आना चाहिए, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन लिखते आना चाहिए, ये एक बार आ गया तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में न्यूमेरिकल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, सॉरी टेक्स्ट बुक का नहीं है, इसके बाद वाला आएगा। इसके बाद में अगर नाइट्रोजन इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गिविंग यू अमोनिया, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 moles of nitrogen disappear in 1 minute. Find ROR means rate of reaction, ROD मतलब rate of disappearance of hydrogen and rate of appearance of ammonia, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो देखो, एंड द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1 लीटर, ऐसा गिवन है। तो देखो, अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है और क्या दे रहा है, 2 molecules ऑफ अमोनिया, जो रिएक्शन थी वो लिखा हमने, और क्या गिवन है, 2 moles ऑफ नाइट्रोजन डिसअपियर इन 1 minute, मतलब नाइट्रोजन का दिया हुआ है डिसअपियरेंस का वैल्यू, ठीक है। तो डेल्टा N2 बाई डेल्टा T लिखेंगे इक्वल टू, क्योंकि ये रिएक्टेंट में है तो -2 moles 1 लीटर में हो रहा है, इसलिए 1 लीटर डिवाइडेड बाय कितना टाइम में, देखो 1 मिनट का भी टाइम दिया है, तो डिवाइडेड बाय डेल्टा T कितना है, 1 मिनट। तो कैसे लिखेंगे, -2 moles बाय ये 1 लीटर नीचे चला जाएगा, 1 इंटू 1 मिनट को 60 सेकेंड लिखेंगे, ठीक है, 1 मिनट को 60 सेकेंड कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/30 मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, तो ये हो गया रेट ऑफ, जो दिया था 2 moles, उसके लिए जो वैल्यू दी थी उससे हमको क्या निकला, नाइट्रोजन के बारे में निकला, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। इसके बाद में ROR जो है वो निकालेंगे, फर्स्ट जो पूछा है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारे पास है पहले से,
कि आर ओ आर इक्वल टू, या फिर इक्वेशन हमको लिखते आना चाहिए, ये मैंने इसके पहले भी बोला। क्या लिखेंगे देखो, रिएक्शन को देख के, ये फर्स्ट ऊपर में जो रिएक्शन दी हुई है उसको देखकर N2 क्या रहेगा, माइनस कुछ भी नहीं है कोएफिशिएंट, इसलिए 1/1 डेल्टा N2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी। और बाद में हाइड्रोजन का क्या है, अगेन रिएक्टेंट पार्ट में तो -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है तो +1/2 NH3 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब क्या निकालना है, ROR निकालना है। तो ROR निकालने के लिए हमारे पास किसकी वैल्यू थी, इसकी जो अभी हमने ऊपर निकाली। तो डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी की वैल्यू 1/1 जैसे कि वैसे इक्वल टू ROR है वो करेंगे, लिखेंगे। माइनस ऑफ 1/1 इंटू माइनस ऑफ 1/30 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ROR की वैल्यू प्लस में ही होती है, तो 1/30 मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, 1/30 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये एक निकल गया ROR। सेकंड पूछा हुआ है ROD, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन हम पहले से ही मोड लगा देते, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट पार्ट में नेगेटिव साइन है, वो हमको नहीं चाहिए, इसलिए हमने मोड लगा दिया है उसको। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेल्टा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी। तो हमारे पास इक्वेशन से है कि ROR इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी। कहाँ से है अपने पास में, ये अभी हमने यहाँ इक्वेशन लिखा था, देखो -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी कॉन्सेंट्रेशन, वही इक्वेशन हम यहाँ यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ROR की वैल्यू हमारे पास है और ये इक्वेशन हमने लिखा जो रिएक्शन था उस पे से। तो फिर ROR की वैल्यू है हमारे पास 1/30 माइनस 1/3 जैसे कि वैसे डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी। अब क्या होगा, 3 इस साइड चला जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो क्या हो जाएगा, 3/30 इक्वल टू माइनस डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी। लेकिन हमको माइनस साइन नहीं चाहिए, नहीं रहती है इसमें माइनस साइन, इसलिए हम उसको फिर से क्या करेंगे, मोड लगा देंगे और आंसर क्या हो जाएगा 1/10। तो पूछा था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, तो क्या रहेगा 1/10 क्या रहेगा, डेल्टा H2 कॉन्सेंट्रेशन बाय डेल्टा टी इक्वल टू 1/10 मोल पर DM³ बोलो या पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, इस टाइप से इसका यूनिट रहेगा। तो ये सेकंड फाइंड आउट हो गया हमारा ROD। इसके बाद में थर्ड पूछा था रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। वो निकालने के लिए फिर से वो जो इक्वेशन था हमारे पास, देखो यहाँ पर इक्वेशन में क्या लिखा था, +1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी, क्योंकि इसका अपीयरेंस पूछ रहे तो वही यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से किसको इक्विवेलेंट है ये, ROR को, तो वही लिखेंगे ROR इक्वल टू +1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। ओके, अब क्या हो जाएगा, 1/2 है तो ये 2 की टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देंगे तो ट्वाइस ROR हो जाएगा। ROR की वैल्यू हमारे पास है 130, इनको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/15। तो अगेन 1/15 मोल पर DM³ पर लीटर, मोल DM³ पर सेकेंड, सॉरी ये इसका यूनिट है। ओके, ये इस साइड लिखना था, डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी, इसका ये ROA अपीयरेंस जो है वो हमने निकाला। ठीक है, तो ये इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। एक और टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल लेंगे। देखो टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, इस फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो शायद आपको इजी लगे। रिएक्शन दी हुई है, N2O5 गिव्स यू 4 ट्वाइस N2O5 गिव्स यू 4NO2 प्लस O2 in liquid bromine. N2O5 disappears at a rate of 0.02 moles per DM³ per second. At what rate NO2 and O2 are formed? What would be the rate of reaction? ओके, तो गिवन क्या है देखो, इसमें सबसे पहले तो डेल्टा N2O5 कॉन्सेंट्रेशन बाय dt, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.02 मोल्स पर DM³ पर सेकेंड। ठीक है, तो जिसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। फिर हम रिएक्शन को देखते हुए उसका फॉर्म लिख लेंगे, ROR का फॉर्म। तो देखो रिएक्शन क्या है, ट्वाइस N2O5 है तो क्या हो जाएगा, ROR विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ N2O5 dt बाय dt। ओके, और फिर क्या है, 4NO2 है तो 1/4 प्लस में जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट है, तो +1/4 dNO2 बाय dt।
इसके बाद में क्या है 1O2 है तो 1/+1/1 d ऑफ O2 ऑफ dt, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2/dt। ये लिखते आ जाना चाहिए आप लोगों को, बस फिर हो गया अपना सिंपल। इसके बाद में पूछा है व्हाट वुड बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2, ठीक है, ये एक गिवन है NO2 और O2 पूछा है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे ROR निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों की टर्म्स में से ये गिवन है तो ROR निकाल लिया, ये निकाल लिया तो ये भी फाइंड कर सकते, ये निकाल लिया तो ये भी फाइंड कर सकते। ओके, तो देखो -1/2 dN2O5/dt, इसकी वैल्यू हमको गिवन है 0.02, वो पुट किया हमने, सॉल्व किया इसको, तो इसका आंसर आ गया ROR इक्वल टू -0.01 मोल्स पर dm³ या पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद में ROR फॉर NO2 जो हमको निकालना है, इक्वेशन में से हम उसको वैल्यू को लिखेंगे 1/4 d ऑफ NO2/dt। फिर क्या करेंगे, ROR की वैल्यू पता है -0.01, 1/4 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 0.04, ठीक है। अब माइनस का साइन है तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको मोड लगाने वाले हैं, राइट। माइनस का साइन है इसलिए हम इसको मोड लगा देंगे, तो अगर जब हम इसको मोड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मोड d ऑफ NO2/dt इक्वल टू 0.04 मोल्स पर dm³ पर सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा, राइट। इसके बाद में O2 का फॉर्म करना है, देखो इक्वेशन में +1/1 d O2/dt, ROR इक्वल टू 1/1 d O2/dt। अगेन ROR की वैल्यू है हमारे पास -0.01, क्या करेंगे इक्वल टू d ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ d O2/O2 1/1 ही है, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा 0.01 मोल्स पर dm³ पर सेकेंड। मोड लगा देंगे हम तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो आई होप ये 2 इक्वेशन से या 2 या 3 न्यूमेरिकल से आप लोगों को समझ में आया हो। इसके लिए इस टॉपिक का एक होमवर्क टेक्सचुअल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, जिसमें आयोडीन, थ्राइस आयोडीन प्लस H2O2 गिविंग यू आयोडाइड प्लस एस सल्फेट, ठीक है। आगे का क्वेश्चन आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से देखना है और सॉल्व करके मुझे बताना है। ओके, आई होप अगर आगे का ऊपर के सारे सॉल्व करते आए होंगे या समझे होंगे तो फिर ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते आएगा, तो मुझे पता चलेगा कौन से बच्चों को समझ में आया नहीं आया। मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप करके भी आंसर भेज सकते हो, फोटो खींच के भी भेज सकते हो, या क्लासरूम पे भी भेज सकते हो। ओके, पर भेजना है सबको, और राइटिंग में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना है तो ही आप लोगों को आएगा। ओके।